Hello. Can anyone tell what is accountancy? Accounting किसको बोलते हैं? What is accounting? Sir, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner. Okay. See, we can't say accounting is an art. Okay, it is an art. It is an science. We have read it, but we will be starting like it is a process. Basically, it is a process. Okay, the process means कि it should be in a sequence way. वो sequence में होना चाहिए. First of all, we will be identifying the business transaction. Okay, so what is the identification of business transaction or events? Sir, it should be in terms of money. It should be in terms of money, but identification of business transaction is because the business owner can make expenses regarding his personal expenses also. No? There is personal expenses of the owner. He can suppose he is paying his rent or anything. So we are not going to include it in a business. Simply we will name it as drawing. It is a drawing. So identification of business transaction event means any transaction in which the business is involved. First of all, we should know this कि business must be involved in that transaction. Okay. So when the business will be involved in a transaction, then we will see that whether that transaction contains monetary value or not. Money में होना चाहिए. कोई भी हम लोग business में वही transactions को record करेंगे या events को record करेंगे जो कि money में हो. ठीक है? So we are using transaction and events. What is transaction? What do you mean by transaction? Transaction means sale and purchase of goods and services, है ना? या फिर paying expenses, income. All these are transactions of a business. And what is the event? Event is always one-sided. Okay. One-sided event means loss by fire, loss by theft. So it is a one-sided. So event is always one-sided. It is something that happens sometimes, not regularly. And transaction is, it is a regular kind of transaction in a business. Okay. खरीद बेच करना, rent pay करना, income आना, all these are transactions. और events वो है जो कभी कभी होता है. ठीक है, जनरली नहीं होता है. तो गॉट इट. तो अभी हम लोग दो चीज पढ़े कि एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए उसका. थर्ड वन इज वी मस्ट रिकॉर्ड इट. मतलब रिकॉर्डिंग मींस जर्नलाइजिंग इट, है ना. सो वी मस्ट बी रिकॉर्डिंग आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन. दैट इज वी आर जर्नलाइजिंग इट. तो जर्नल क्या होता है पता है सबको? रिकॉर्डिंग ऑफ अ बुक ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स. क्लियर है? So everyone, there is a 5 minutes break and I'm starting. Not meeting is not going to end, but there will be a pause of 5 minutes and then I will be restarting again. Just wait for 5 minutes.
ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आते हैं, दैट इज वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. रिकॉर्डिंग मींस जर्नलाइजिंग. We journalize the transaction, and then what we do? Classify. Very good. Classification of transaction or events. Classification means ledger. And then we used to summarize the transaction. Summarizing of transaction means making trading and PL account. Okay. Yes, sir. So that we can find out the result of the business. That is, there is either profit or loss. So while making information that whether there is a profit or loss, after we get the information that okay, there is a profit or there is a loss, what we do, we analyze the business result. Analyzing of business result means balance sheet. not actually a balance sheet. Analyzing means beyond balance sheet. Statement of That is ratio. What we have learned is ratio analysis and all that are analysis of business result. That is how much profit we made in comparison to previous year. What are the more things that we can do better for getting more and more profits? So analyzing business result in that way. If there is loss, so what were the reason that we got a loss? Is there a lot of expenses or there is a scope of income that we can generate more? So analyze the business result, and after analyzing it, we communicate it to the users. जितने भी यूजर्स होते हैं उन लोग को हम क्या करते हैं, ये चीज बता देते हैं कि क्या हम लोग के बिजनेस का रिजल्ट रहा. तो हु आर द यूजर्स? नाउ द क्वेश्चन इज, यूजर्स कौन होते हैं? So there are two kinds of See, your voice is not clear. Can anyone else tell me what? Investor. Two types of. Hello. हाँ बोलो. Sir, external or Basically, internal? there are two types of user: internal user and external user. In external user, we assume the person that is related to business. We can say employee, manager, etc., etc. And external user is government, our investor. ठीक है. So ये बताओ कि जैसे कौन कौन यूजर्स हो सकते हैं, पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. इंटरनल एक्सटर्नल बाद में देखेंगे, ठीक है. देयर कैन बी ओनर, जिसको प्रॉफिट लॉस से मतलब है, दोज हु वांट टू नो प्रॉफिट लॉस. देन देयर विल बी अ मैनेजमेंट, जो बिजनेस संभाल रहे हैं. उसके बाद देयर विल बी द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय शुड नो कि वेदर उसके बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, so that they can also analyze na we will be getting bonus or not, or they will work next time more harder. Investors, why investors need business informations? to invest in the Because company. कोई इन्वेस्टर जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो पहले कंपनी को एनालाइज करता है तो वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में. बिल्कुल. तो अगर उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस, हाँ, अगर उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, इफ माय बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, सो ही विल बी इन्वेस्टिंग इट इन इट, है ना. तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं. प्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट. ओके. देन द सप्लायर्स विल बी आल्सो देयर. सप्लायर्स जो कि क्रेडिट में देते हैं हम लोग को सामान, सो दे विल बी सीइंग ना कि वेदर वी हैव द पोटेंशियल टू रीपे देम और नॉट, we can repay them or not, है ना. तो suppliers will also see into it. Then bank, why will bank need information of our business? तो बैंक क्योंकि सर जो हम लोग हम अर्निंग जनरेट कर रहे हैं या नहीं, उस बेसिस पे बैंक हमें लोन देती है सर. Yes sir. बैंक लोन्स लेने के लिए we need to give the information to the bank. And then comes the last, government authorities. What do you mean by government authorities? गवर्नमेंट, हाँ बोलो. गवर्नमेंट भी एनालाइज करती है हमारे बिजनेस को, टैक्सेस कितने चार्ज करने हैं इसके अकॉर्डिंग. गवर्नमेंट
Tax authorities, in the government and the government authorities, it is a tax authorities, income tax को चाहिए information regarding how much tax they should be charging in our business, है ना? तो tax in the business is according to the profit of the business. So they also want to know that what is the profit of the business. So this is all about accounting. Okay. So I think it is clear to all of you. Now we will come to bookkeeping. What do you mean by bookkeeping? In accounting, you must know one thing. Ki we will be starting like it is a process of recording, identifying, recording, classifying, summarizing, and analyzing business transaction or event, which can be measured in monetary terms. So it is a process where we identify, record, classify, summarize, and analyze. What we do this? Transactions or business events, which can be measured in monetary terms. Okay, is it clear? Okay. Now it comes bookkeeping. What is bookkeeping? Sir, bookkeeping is an art of recording in books of accounts. Very good. It is an art or it's a system of recording business transactions systematically in book of accounts. So, what is the difference between bookkeeping and accounting? So bookkeeping starts where accountancy starts where bookkeeping is end. Accountancy starts where bookkeeping ends, and bookkeeping can be done by any of the person who have a basic knowledge of accountancy. Sir, bookkeeping is primary stage and accounting is the secondary stage. Okay. So basically वही हुआ ना कि bookkeeping के लिए कोई special knowledge रहना जरूरी नहीं है. For a bookkeeping, we can also those person who have a basic knowledge of accounts can also make a bookkeeping. But for accounting, you need some special knowledge because over there we analyze. So bookkeeping includes only recording, classifying, and summarizing. We just record and classify basically in bookkeeping. That is the primary stage. And then what starts? Accounting. So where bookkeeping ends, accounting starts. It is okay? And bookkeeping supports accounting. Okay, so we have discussed two definitions. One is accountancy and accounting, and other is bookkeeping. Now we will be discussing about accountancy. What is accountancy? We have discussed accounting and bookkeeping. What is accountancy now? Third one. Accountants. The entire body of theory and practice of accounting is called accountancy. Yes. It is the systematic knowledge and rules which we applied in accounting process is known as accountancy. So it is basically a systematical knowledge to the principles and techniques that we apply in accounting is basically a accountancy. Means accountancy include both bookkeeping and accounting. And after accountancy, there is audit. We will be discussing it later on what is audit and what is. Now, you must be knowing there is an accounting cycle. Yes, sir. So right now, my laptop is not getting connected, else I would have shown you the PDF also. I'm trying to connect it. If it will be connected, I will be sharing a PDF, or else I will be sending that PDF in the group after this meeting ends. Okay. Okay, sir. So now we were discussing about accounting cycle. Okay. Wait a minute.
Yes. Now everyone can see the PDF file. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. So what we have discussed till now is the concept of accounting, and various aspects relating accounting, that it is an economic event, identification of business transaction, measurable in monetary term, and everything. Now there is users of business. These are the users of business. We have discussed it. What is bookkeeping? What is accountancy? It is also clear to all of you. Now this is an accounting cycle. What basically is accounting cycle? A systematic record of business transactions and events. That is, first of all, there is a financial transaction. After this financial transaction, the transaction takes place. We record it in journal. From journal, we post it to ledger and then trial balance. At the end of the year, we make income statement. Income statement means trading and profit and loss account, and then the position statement. Position statement means balance sheet. And from next year again, financial transaction starts. So it goes on. So financial transaction, recording in journal, ledger, trial balance, income statement, and position statement. So it is a cycle because it goes on every year. What is the financial year? When it starts and when it ends? 1st April to 31st March. Okay. Now, what are the objective of accounting? So what is the objective? Why do we keep accounting? So to keep systematic and complete record of all financial transaction. There is many financial transaction in the business, and we can't remember each and every transaction. That is why we keep this in a systematic way. Then to ascertain profit or loss, whether my business is in profit or in loss. To ascertain the financial position of business. Okay, from where do we get profit or loss? Which account? PL. Income statement. Income statement. है trading and profit and loss account. And financial position? Balance sheet. Balance sheet. Good. And then to provide information to various groups and users, we make accounting to give information to different users. To facilitate decision making. What does facilitate decision making means? It just help to management department to take decision regarding to any business policies and plan. So whatever planning we do in future, it is based on our past records, past results. Means how to improve our profit. If there is a loss, then how can we make profit? There are a lot of decisions that a management has to make, and that is made according to the past results of a business. That is why it helps in decision making and to meet legal requirements. All the accounting helps in making all the legal requirements that is needed in the business. Now, advantages of accounting. What is the advantages basically? So it helps in ascertaining the profit and financial position. Profit बताने में help करता है. Financial position, that is how much the asset is in the business and how much the liability is in the business. ये बताने में हम लोग को help करता है. It assists in managing the business. ये हम लोग को business manage करने में भी क्या करता है? Help करता है. It provides systematic record of business transaction. There is a systematic record of business transaction that we use to make with the help of accounting. It facilitates comparative study. What is comparative study? It can from the last year, previous year. Comparison of last year and present year. Okay. See, there are two types of comparison that we make in a business. One is internal, one is external. Okay. So internal comparison means comparing our business transactions with the current year profit and last year profit. That is internal. And what is the external transaction means?
when Comparing we one, compare our business to same level of business. हाँ, means another business in the same industry basically, है ना, एक ही इंडस्ट्री में जो different businesses होते हैं, जैसे एयरटेल है, एक जियो है, both are in a telecommunication industry, है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री के पार्ट है दोनों, और दोनों अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. उसके बाद इट फैसिलिटेट्स करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस हम लोग को सही सही करने में हेल्प करता है. दिस इज द एडवांटेज. What will be the limitation basically of accounting that we are discussing? So limitation will be, it records only monetary transaction. What does accounting records? Only monetary transaction. Non-monetary transaction are not recorded. So this is a limitation. ठीक है. उसके बाद assets are recorded at their historic cost. मार्केट प्राइस में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसको. ठीक है, तो ये हिस्टोरिक कॉस्ट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. उसके बाद अडॉप्शन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज डिपेंड ऑन अ पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटिंग. सी, पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट मींस सबको ये पता होगा ना कि डेप्रिसिएशन एक होता है हम लोग के बिजनेस में, ठीक है ना, हर Yes, एसेट्स पे sir. डेप्रिसिएशन Yes, लगता है. ना होता क्या है ना, यहाँ पर्सनल जजमेंट कहने का मतलब कि अकाउंटिंग पॉलिसी ये तो बोलता है कि हम लोग को हर एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, हमारा एसेट्स का वैल्यू घटना चाहिए, बट वो बोलता है मेथड्स आप अपने से यूज करिए, जो आपको मेथड यूज करना है. तो दैट इज माय पर्सनल जजमेंट ना, हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो पर्सनल जजमेंट में आ जाता है. और कभी कभी वो पर्सनल जजमेंट गलत भी हो सकता है. सो इट इज अ लिमिटेशन. सो बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे मेथड्स है, तो उसमें हमको डिसाइड करना होता है कि हमको कौन सा यूज करना है. उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर एस्टिमेटेड समटाइम, मींस समटाइम इट कम्स इन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. वी यूज अप्रोक्स वैल्यूज, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना. राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, डेसिमल्स में आता है तो वी राउंड ऑफ इट. सो इट इज समथिंग दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट. फिर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है, वहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है. कॉन्फ्लिक्ट रहने का मतलब, देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझाने का कोशिश किए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो एग्जांपल है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, जैसे कंजर्वेटिज्म होता है, रिक्वायर्स दैट स्टॉक शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस. हम लोग अभी आगे जाके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल एक होता है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस. इसमें बोला जाता है ना कि स्टॉक जो है वो वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट या मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, whereas principle of consistency require that either cost or market price basis should be followed. So see, principle of consistency बोलता है या तो कॉस्ट को ही हम लोग फॉलो करेंगे या मार्केट प्राइस को ही फॉलो करेंगे. ठीक है, जो एक बार फॉलो करना शुरू किए हमेशा हम लोग उसी को ही फॉलो करेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे. बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है दोनों में से जो कम होगा हम लोग उसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे बताओ कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं हुआ अपने ही प्रिंसिपल्स में? Yes, sir. So it means that there is a conflict between accounting principles. I hope कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. तो अब we will be discussing about some basic terms right now, and after basic terms we will be coming to accounting principles, accounting concepts, and we will be discussing it after on. So first of all we will be discussing about basic terms. Now in basic terms we will be starting with accounting year. What is accounting year basically? It is the year when business start, financial transaction and end. Okay. So see, we will be taking accounting year will be starting from 1st of April and ending on 31st of March.
ठीक है. So everyone please turn on your videos. Revati, Yuvraj, Manshi, Aditi, everyone turn on your videos. चलो ठीक है. अब हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा. तो हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर इज अ ईयर व्हिच बिजनेस फॉलोज, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April and end on 31st March of the following year, मतलब नेक्स्ट ईयर. दिस इज वेरी सिंपल. हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट टर्म विल बी एसेट. व्हाट इज एसेट? Can anyone tell कि asset क्या है? Asset are those goods which owner invest in business to expand her business and earn to future profit. और कोई बताना चाहेगा? Resources owned and controlled by the business value. The goods which can be transferred in financial. See, why we are using the word goods? क्या goods ही एक assets है? Debtors नहीं हो सकते. Sir, Machine नहीं हो सकता. हाँ बोलो. sir, refer to the property things owned by the business which is concerned the business transaction, which is concerned the terms of money. देखो हम बताते हैं. एसेट्स का ना बेसिकली दो डेफिनेशन होता है. ठीक है, हम लोग दो डेफिनेशन के थ्रू पूरे एसेट्स को समझने का कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है, ऑल द बिजनेस प्रॉपर्टीज आर द बिजनेस एसेट्स. ठीक है ना, लाइक बिल्डिंग, मशीन, लैंड, फर्नीचर, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस है, तो ये बिजनेस एसेट्स है. एंड सेकेंडली ऑल दोज ट्रांजैक्शन व्हिच हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम इन फ्यूचर. कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में मेरे को इनकम जनरेट करने में हेल्प करे, वो भी क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है. जैसे कि कैश होगा, हम लोग खर्च करेंगे तो हम लोग का इनकम फ्यूचर में जनरेट होगा, तो वो एसेट है मेरे लिए. डेटर्स, हम अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो और लोग आएंगे मेरे पास सामान खरीदने, हो सकता है मेरा इनकम उससे और क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेटर्स एसेट है मेरे लिए. ठीक है, तो समझ में आया बेसिकली एसेट्स क्या हो गया कि एक तो बिजनेस प्रॉपर्टी और दूसरा जो मेरे को फ्यूचर में इनकम जनरेट करने में हेल्प करे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कितने टाइप्स के एसेट हैं. 2 types. कौन कौन सा? Intangible. Assets and Visible, invisible. See, कौन बोला tangible, intangible? Working assets और fixed assets. Fixed and current assets. ठीक है ना, दो होता है, फिक्स्ड एंड करंट, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स. ठीक है, करंट एसेट्स वैसे एसेट्स हैं जो कि विद इन 1 ईयर यूज होके खत्म हो जाए, है ना, जो विद इन 1 ईयर यूज होके हम लोग खत्म कर दे, जैसे कि डेटर, कैश, ये सब हम लोग के लिए क्या है, करंट है. और नॉन करंट क्या हो जाएंगे हम लोग के लिए? वैसे एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म यूज में आते हैं, मतलब मोर देन अ ईयर. लॉन्ग टर्म कहने का मतलब क्या हो गया? मोर देन 1 ईयर. Furniture, machine, land, building, all these are non-current. And then when it comes to non-current, वो भी दो टाइप में है, tangible and intangible. Tangible किसको बोलेंगे? That can be seen. Goods which can be touched and physically, touch and seen is known as गुड्स नहीं बोलेंगे हम लोग. बार बार तुम लोग इस वर्ड का यूज कर रहे हो, हम लोग बार बार गुड्स नहीं बोलेंगे. इट इज एसेट. हाँ, इट इज एसेट. सो ऐसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. बहुत सिंपल टर्म्स में अगर वी विल बी डिस्कसिंग एसेट्स व्हिच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब है दैट कैन बी सीन और टच्ड. एंड इनटैंजिबल एसेट्स क्या हो जाएगा? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड intangible assets. हाँ, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स. ठीक है, बहुत सारे intangible assets होते हैं.
सर एडवर्टाइजमेंट को भी सर एज्यूम किया जाता है ना सर एसेट्स के रूप में? हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट को भी हम लोग एसेट्स मानते हैं। जो डिस्काउंट देते हैं ना, हाँ सर, वो भी एसेट्स है। क्यों? वो सब एसेट्स है मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे इनकम को जनरेट करने में हेल्प। वेरी गुड। फ्यूचर में वो मेरे इनकम को जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। हम डिस्काउंट देंगे तो फुटफॉल बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा मेरे बिजनेस का, तो वो कहीं ना तो कहीं मेरे बिजनेस को ग्रो करने में क्या कर रहा है, इनकम फ्यूचर में कमाने में हेल्प कर रहा है। दैट इज वाई वो भी एसेट्स है। हम लोग भी डिस्कस करेंगे वो कौन सा एसेट्स है अभी। ठीक है, तो टैंजेबल इंटैंजेबल क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है। अब कोई मेरे को ये बता सकता है कि डेटर टैंजेबल है या इंटैंजेबल? टेंजिबल। टेंजिबल। कैश? टेंजिबल। टेंजिबल। चलो ठीक है, हम एक बात बताते हैं कि ये जो टैंजेबल इंटैंजेबल एसेट्स है, ये किसके टाइप्स है? एसेट्स के, नॉट एसेट्स के, नॉन करंट करंट एसेट्स के। Current assets. ठीक है ना? मतलब हम ऐसे ही एक बार पूछे थे कि तुम लोग कितना इसमें ध्यान देते हो। जो टैंजेबल इंटैंजेबल है वो नॉन करंट एसेट्स के टाइप है। सो ओनली नॉन करंट एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इन टैंजेबल और इंटैंजेबल। करंट एसेट्स को हम लोग नहीं डालेंगे। कैश, डेटर, ये सब करंट एसेट्स है। तो इसमें हम लोग को ये नहीं है कि वो टैंजेबल है कि इंटैंजेबल है। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया ये एसेट्स क्या होता है। इसके अलावा ना बहुत सारी जगह पे देखोगे एक और एसेट्स होता है जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सुना हुआ है नाम? सर। यस सर। जो यस बोला, बताओ कि क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स? सर ये एक इमेजिनरी एसेट्स माना जाता है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, कि अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग में कितने खर्चे लग सकते हैं। चलो वेरी गुड। तो बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स इज इमेजिनरी। कभी भी हम लोग कोई मूवी, टीवी, सीरियल ये सब देखते हैं तो स्टार्टिंग में कभी ध्यान दियो डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस, ऑल द नेम्स एंड कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस, मतलब इमेजिनरी है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बोला गया कि फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि इमेजिनरी नेचर के होते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं एसेट, बट एक्चुअली में उनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता। तो अगर कोई बोलेगा ना कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, तो दीज आर दोज एसेट्स विच डज नॉट हैव मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग बेच नहीं सकते हैं। डेफिनेशन के कारण वो मेरे लिए एसेट है। एसेट बने क्यों? डेफिनेशन की वजह से। जैसे अभी डिस्कस किए थे ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मेरे लिए एसेट है। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को क्या हम सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बट वो मेरे लिए एसेट क्यों बना? क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर में इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। हम जितना एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे उतना ज्यादा फ्यूचर में मेरे पास कस्टमर्स आएंगे। इनकम जनरेट करने में हेल्प किया कि नहीं किया? तो दैट इज एसेट, बट उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, इसी के लिए वो क्या हो जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। तो सर फिक्टिशियस एसेट्स हमको कैसे हेल्प करती है इनकम जनरेट करने में? एडवर्टीजमेंट बिजनेस को हेल्प करती है इनकम जनरेट करने में। यस सर। जैसे हम लोग सर एक और ये टॉपिक लेते हैं, जैसे रेंट पेड इन एडवांस, सर इसको भी एसेट्स के टाइप में हम लोग बैलेंस शीट में सर रखते हैं सर। तो सर इसको सर क्यों एज्यूम करते हैं सर एसेट्स? क्योंकि हम लोग जब सैलरी सामने वाले को एडवांस में दे दिए, नाउ दैट मींस कि ही विल बी वर्किंग फॉर अस इन फ्यूचर। हमको उसको पेमेंट करने का कोई बर्डन नहीं है, हम एडवांस में दे चुके हैं उसको पेमेंट। यस सर। ठीक है ना? तो वो एक तरह से मेरे लिए, जब हम लोग गोल्डन रूल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको और अच्छी तरीके से एक एक करके समझेंगे। ठीक है? ये जो तुम्हारा जितना भी डाउट है ना, ये सब हम लोग जब गोल्डन रूल डिस्कस कर रहे होंगे उस समय पूछना, उस समय हम उसको प्रॉपर रूल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि अभी हम लोग गोल्डन रूल पे पहुंचे नहीं है, इसी के लिए हम उसको उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट इतना हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग एडवांस में सैलरी दे चुके हैं। अब मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि उसको अब हमको उससे सर्विस मिलना है। तो ये जब भी हमको किसी से कुछ मिलना रहता है तो वो मेरे लिए एसेट बन जाता है। बोलो।
तो सर जैसे ये एसेट्स की सर डिफिनेशन है जो ये सर्टिफाई करता है जो ये इनकम मेरी जनरेट करेगी लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए सर। तो ये सर फिर सर्टिफाई कहाँ कंडीशन को कर रहा है जो मैं रेट एडवांस में पेड किया, तो ये फिर सर्टिफाई कंडीशन को नहीं कर रहा है ना कि मेरा नहीं कर एडवांस कैसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हम एडवांस रेंट पे कर चुके हैं तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि मेरा बिजनेस उतने टाइम तक वहीं पे रहेगा, हमको जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। रेंट में वरना क्या होता है कि तुमको अगर सपोज करो तुम रेंट पे कर रहे हो, तुमको तो आके ओनर ये बोल सकता है ना कि अब मेरा जगह आप खाली करिए। यस सर। है ना, मेरे से जगह खाली करवा सकता है। बट अगर हम एडवांस रेंट दे चुके हैं, इसका मतलब हम जितना तक का एडवांस दिए हैं वहां तक तो हम उस बिजनेस को वहां पे चला रहे हैं, हम इनकम जनरेट करेंगे। अब वो जगह से हम हट नहीं सकते हैं जब तक हम उसको एडवांस दिए हुए हैं। यस सर। है ना, तो वो उतने टाइम को मेरे को हेल्प कर रहा है ना कि हाँ इतना तो अब मेरा बिजनेस चलेगा, हम कंफर्म है, अब मेरे को उसका टेंशन नहीं है। तो इसी के लिए वो मेरे एसेट्स को मतलब मेरे इनकम को बढ़ाने में उस तरह से ये क्या करता है, हेल्प करता है। देखो नॉट नेसेसरीली कि हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि इनकम बढ़ाने में मतलब पैसा ही आ रहा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, हम लोग यहाँ एक्सपेंस की है, बट फिर भी वो एसेट है क्योंकि वो फ्यूचर में इनकम बढ़ाएगा। तो एडवांस में हम रेंट दिए, एडवांस में हम सैलरी दिए, मतलब अब वो जो स्टाफ है वो मेरे पास उतना टाइम तो काम करेगा, वो मेरे बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा जितना हम उसको एडवांस दिए। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। और किसी को कोई डाउट है एसेट्स में? पूछना कोई कुछ पूछना है? या अभी तक जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें से कोई चीज पूछना है? एनीवन? चलो हेलो। बोलो बोलो। सर जैसे स्टार्टिंग किए थे सर अकाउंटिंग का आप डिफिनेशन और अकाउंटेंसी का बताए थे, फिर ये सर एक टर्म छूट गई थी अकाउंट। हाँ, तो अकाउंट्स जो टर्म है बेसिकली अकाउंट्स है क्या? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस जो कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, है ना। अकाउंट्स इज व्हाट इज अकाउंट्स, बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बहुत ही इजी टर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस जो कि हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि ओनर और बिजनेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। तो देखो क्या है कि हम लोग का अभी बेसिक टर्म्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग सारा बेसिक टर्म्स एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज को डिस्कस करके इस टॉपिक को क्लियर करके फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। एक बार तुम लोग का ये थोड़ा सा फास्ट रिविजन की तरह इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर किसी को कोई डाउट होगा कुछ होगा तो तुम लोग पूछोगे। ठीक है ना, ये एक तरह से तुम लोग का रिविजन हो रहा है ताकि आगे हम लोग को जितना भी अकाउंट्स पढ़ना है ना, हर एक में जर्नल और लेजर का तो यूज है ही है, ये याद रखना। जितना भी अकाउंट्स पढ़ना है उसमें जर्नल एंड लेजर का यूज आएगा। एंड फॉर जर्नल एंड लेजर उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमको क्या करना है, बेसिक टर्म्स स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर बेसिक टर्म्स का कॉन्सेप्ट और जो रूल है वो रूल अगर मेरा उतना वीक रह गया तो फिर हम लोग को ये आगे जाके क्या देगा, दिक्कत देगा। तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? एसेट्स तक में तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी? No, sir. चलो बढ़िया। So now we will be discussing more in the next class.